Hello guys, now today we are going to see the classification of organic compounds. Organic compounds को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं वो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं दोस्तों. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अब हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है. तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें पहले हमने देखा हाउ टू ड्रॉ मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशन. ओके, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशन, as well as we have seen the how to draw structures of different molecule by different methods, right? तो उसके बाद अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हाउ these organic compounds are classified on the basis of what? Now there are so many organic compounds are there. Okay, millions of organic compounds are there, so their classification is very important, friends. Okay, and these organic compounds, they are classified on the basis of, first is carbon skeleton, okay, and second is what, on the basis of functional group. So first we will see classification of organic compounds on the basis of carbon skeleton. Okay, अब देखो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं. पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Organic compounds, you know which compounds are called organic compounds? Carbon related compounds, they are called organic compounds. तो हम organic compounds को classify करते हैं on the basis of, first classification based on first is classification based on structure, actually based on structure or carbon skeleton, on carbon skeleton पे डिपेंड है फर्स्ट क्लासिफिकेशन. तो कार्बन का स्केलेटन कैसा है उस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं. इसलिए आपको एक डायग्राम है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ट्री डायग्राम और ट्री चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फर्स्टली हम वो ड्रा करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई से क्यों करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन वी क्लासिफाई देम. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द ट्री चार्ट और ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, तो ये ड्रॉ करके लो आप. ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट राइट ऑन हियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, these organic compounds, they are further classified into two types, actually main types: acyclic and cyclic. Okay, main two types, they are called acyclic, or you can say aliphatic, okay, or open chain compounds. Okay, and second type is what, cyclic, or ring or closed chain compounds. Okay, closed chain compounds. Now these are the two main types. Okay, first of all organic compounds, they are classified into two types. एक तो open chain और दूसरी closed chain. open chain, अगर कार्बन एटम्स ज्वाइन होके एक ओपन चेन तैयार करते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स या असाइक्लिक कंपाउंड्स. और अगर कार्बन एटम ज्वाइन होके रिंग तैयार करते हैं तो उनको हम कहते हैं साइक्लिक या रिंग कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. ओके, अब हम इसके बाद साइक्लिक, रिंग और क्लोज्ड चेन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं. वो है होमोसाइक्लिक, और ये साइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. ओके, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को ही हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक. जो रिंग सिर्फ कार्बन की बनी होती है उसको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक. ड्रॉ दिस चार्ट. ओके, कार्बोसाइक्लिक. Now this carbocyclic or homocyclic, it is again classified into alicyclic and aromatic. Alicyclic and aromatic. Alicyclic and aromatic compound. And these aromatic compounds, they are further classified into two types: benzenoid and non-benzenoid. Okay, very important. Benzenoid, if they contain benzene in their structure, they are called benzenoid, and second is non
benzenoid, very interesting, very important. Okay, benzenoid and non-benzenoid. Now these heterocyclic compounds, they are further classified into heterocyclic compounds are further classified into heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic. Okay, heterocyclic aromatic, heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic, heterocyclic non-aromatic. ओके, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, फिर हेटेरोसाइक्लिक में हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक. ओके, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक, बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक. ठीक है, ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक. एरोमेटिक में भी टाइप्स है, अगर एरोमेटिक है कंपाउंड उसमें बेंजीन रिंग है तो वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक है. ठीक है, तो ये ट्री चार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन का. ठीक है, तो एक एक पार्ट आपको समझ में आना है. यहाँ पे देखो असाइक्लिक कंपाउंड यानी क्या, व्हाट इज असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड. whenever the carbon atoms, when carbon atoms they are joined with each other to form an open chain, then that is called acyclic or open chain compound. When carbon atoms they are joined to form cyclic or cyclic chain or ring chain or closed chain, two or more closed chain, when carbon atoms are joined to form two or more rings, then they are called ring or closed chain compound. When the ring is made up of only carbons, then it is called homocyclic or carbocyclic. And when the ring is made up of carbon as well as other heteroatom. अब हेटेरोएटम कौन कौन से है? हेटेरोएटम याद रखो, ये हेटेरोएटम, हेटेरोएटम से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. रिमेंबर दिस, नोट डाउन दिस पॉइंट्स आल्सो. हेटेरोएटम इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. ठीक है, okay, heteroatoms are nitrogen, oxygen और सल्फर. तो these atoms are, अगर कार्बन एटम के साथ अगर एक हेटेरोएटम कौन सा भी प्रेजेंट है तो उस रिंग को हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक. ठीक है, अगर वो एरोमेटिक है तो उसको हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कहेंगे, और अगर एरोमेटिक नहीं है तो हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कहेंगे. अब एरोमेटिक हम कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द रिंग इज एरोमेटिक और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन हकेल्स रूल. ओके, तो वो जो रूल है वो हम नेक्स्ट एक यूनिट है आपको उसमें देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि हेटेरोएटम अगर है कार्बन के साथ तो वो जो रिंग है वो होगी हेटेरोसाइक्लिक. ठीक है, और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, आप कार्बोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक ऐसे दो टाइप से. एलिसाइक्लिक मींस एलिसाइक्लिक इज द कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली carbon atom. Alicyclic and both aromatic, both are made up of carbon atoms, but in the case of alicyclic there is a carbon single one only. आप समझो, मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड देखो. ठीक है, अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है. बॉन्ड लाइन फार्मूला ये. ठीक है, अब ये 6 है और साइक्लिक कंपाउंड है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दोस्तों, राइट. सो इट इज साइक्लोहेक्सेन, इट इज साइक्लोहेक्सेन. अब यहां पे देखो, साइक्लो मींस साइक्लिक, राइट. साइक्लो मींस साइक्लिक एंड हेक्सेन, साइक्लो मींस साइक्लिक, हेक्सेन मींस 6 कार्बन एटम. 6 कार्बन एटम्स दे आर जॉइंड टू फॉर्म साइक्लिक रिंग, साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, अब इसमें आपको ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक है दोस्तों. एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं हम? अगर एक रिंग है वो कार्बन एटम से बनी है, कभी कभी कार्बन एटम के साथ और कुछ हेटेरोसाइक्लिक में हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होते हैं. तो एरोमेटिक होने के लिए एक तो वो रिंग कैसी होनी चाहिए? प्लेनार होनी चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए सब एटम्स. ठीक है, तो इसके कंडीशन जो है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि एरोमेटिक मींस व्हाट. एरोमेटिक मींस व्हाट? एक्चुअली अ रिंग व्हिच इज हैविंग, देखो यहाँ पे समझो मेरे पास एक रिंग है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ. एलिसाइक्लिक का एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन है. अब एरोमेटिक का क्या है? देखो, एनी साइक्लिक प्लेनार
प्लेनार मींस एक ही प्लेन में, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, साइक्लिक प्लेनार एंड कॉन्जुगेटेड रिंग। अब साइक्लिक, ये तो है साइक्लिक, ठीक है। ये बेंजीन है, आपको पता है ये इट इज बेंजीन। तो बेंजीन को हम एरोमेटिक क्यों कहते हैं? देखो, एक तो साइक्लिक है, दूसरी बात प्लेनार, एक ही प्लेन में होते हैं सब एटम्स, ठीक है। अब ये 6 जो कार्बन एटम होते हैं, देखो ये जो फ्लैट रिंग होती है ये ऐसे बनी हुई होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे होते हैं। और हाइड्रोजन होते हैं वो p ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं इस पे परपेंडिकुलर, ओके। अब ये 1 2 3 4 5 6 जो एटम है एक ही प्लेन में, ओके, एक ही प्लेन में। और ये जो साइक्लिक प्लेनार और कॉन्जुगेटेड रिंग क्यों कहते हैं इसको? व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड इसलिए कहते हैं दोस्तों बिकॉज इट कंटेन्स अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ओके ओके। तो दिस इज व्हाट हुकेल्स रूल, ओके। कंपाउंड को एरोमेटिक कैसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दैट रूल व्हिच वी विल सी इन द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ये पॉइंट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं हम, उस कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रूल। एक तो वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ये साइक्लिक है बेंजीन। दूसरी बात प्लेनार होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए सब एटम्स, ठीक है। ये 6 कार्बन दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। एंड थर्ड पॉइंट कॉन्जुगेटेड रिंग। कॉन्जुगेटेड मींस अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए उसमें, ठीक है। इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। और दूसरी बात और एक कही है उस रूल ने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 4n+2 यानी क्या? यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग। अब यहाँ पे एक रिंग है, तो एक रिंग है तो n की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, 4 into 1 4, 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर। अब ये देखो पाई बॉन्ड जो है ये 3 पाई बॉन्ड्स है, दिस इज 1 पाई बॉन्ड, दिस इज सेकंड पाई बॉन्ड, दिस इज थर्ड पाई बॉन्ड, ओके। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको केमिकल बॉन्डिंग में है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सिंगल और डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में ये पाई बॉन्ड होता है और ये सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्ड यानी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ओके। एक रिंग है, n की वैल्यू हमने 1 डाल दी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो दिस रिंग इज एरोमेटिक, ओके। सो व्हिच कंपाउंड्स आर एरोमेटिक? द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर cyclic. First case condition is that, first condition is it is cyclic, should be cyclic, it is cyclic. Planar, it should be planar. And conjugated means it should contain alternate single double bond and have 4n+2 pi electrons where n is equal to number of rings, okay. So this system is aromatic, hence benzene is aromatic compound, okay. तो ये aromatic में भी आप बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड ऐसे कंपाउंड है। अगर aromatic कंपाउंड है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है और वहां पे कभी-कभी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हेटेरो एरोमेटिक हो सकता है, राइट। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकता है। तो अगर वहां पे बेंजीन रिंग नहीं है तो एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक के साथ बेंजीन भी है, अब ये बेंजीन है, इट इज बेंजीनॉइड एरोमेटिक, ओके। सो इन दिस वे यू कैन से दैट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा? देखो ये एरोमेटिक है, लेकिन अभी एलिसाइक्लिक का मैंने एग्जांपल दिया, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ कार्बन कार्बन में, साइक्लोहेक्सेन, इट इज व्हाट? एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और ये बेंजीन जो है, बेंजीन इट इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में भी ये बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ठीक है। सो दीस आर व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स, ओके। सो नोट डाउन दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने दोस्तों। पहले मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया, एल-साइक्लिक, एलिफेटिक, ओपन चेन। जैसा कि अल्केन्स जो है, अल्केन्स में कार्बन कार्बन एटम्स ओपन चेन अगर जब तैयार करते हैं, कार्बन कार्बन एटम्स दे आर जॉइंड टू फॉर्म
ओपन चेन, देन दे आर कॉल्ड एलिफेटिक और असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरे होते हैं साइक्लिक, जैसे बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, ओके। तो ये साइक्लिक जो कंपाउंड है, साइक्लिक या रिंग या क्लोज चेन, उनको भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी सिर्फ कार्बन एटम्स की बनी हुई है रिंग, होमोसाइक्लिक दोनों भी होमोसाइक्लिक है क्योंकि कार्बन एटम्स से बनी हुई है, ठीक है। कार्बोसाइक्लिक भी उनको कहते हैं हम, उसमें भी दो कैटेगरीज है, राइट। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यानी कार्बन कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं और सिंगल बॉन्ड तैयार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक, एरोमेटिक में अगर ये कंडीशन वो फॉलो करता है, साइक्लिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड एंड इट कंटेन्स 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कंपाउंड होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी फिर दो कंडीशन, दो कैटेगरीज है, बेंजोनाइड कंपाउंड और नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगर आपको इसके डेफिनेशंस देखनी है तो मैं एक एक करके आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स इसके देता हूं, ठीक है। तो ये ट्री चार्ट आपने देखा, अब इसके बाद हम इसके डेफिनेशंस एक एक कंपाउंड लेंगे और उसके एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सो टेक फर्स्ट एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज व्हाट? साइक्लिक और असाइक्लिक और ओपन चेन और व्हाट? एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहले नोट डाउन करो। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट? असाइक्लिक, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड, जिसका हम एग्जांपल लेंगे, डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट डाल दो। फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन में पॉइंट है दैट इज व्हाट? Acyclic. Organic compounds are classified into two types. First, what? Acyclic, acyclic, or aliphatic, or open chain. Open chain compounds. ठीक है। तो आपको डेफिनेशन के साथ अगर एग्जांपल दिया तो आपको बहुत इजी जाएगा, ओके। Acyclic, aliphatic या open chain. When in these compounds carbon atoms are joined, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख के लो। These are the compounds in which carbon atoms are joined. These are the compounds in which carbon atoms are joined. Carbon atoms are joined to form open chain. Okay, open chain. They are also called aliphatic or open chain compound, acyclic compound. Example के लिए मैं दे रहा हूँ, देखो, open chain. CH3 CH2 CH2 CH3, it is N-butane, नॉर्मल स्ट्रेट चेन है तो इसको हम कहते हैं N-butane, ठीक है। N-butane is also example of aliphatic compound और it is called isobutane. Isobutane दूसरा जो कंपाउंड है वो भी ओपन चेन कंपाउंड है, देखो ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है, ओके। तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम है ये आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो दोनों भी एग्जांपल किसके हैं? बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो जिस कंपाउंड्स में भी कार्बन एटम ज्वाइन होके ओपन चेन तैयार करते हैं उनको हम कहते हैं असाइक्लिक, एलिफेटिक, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जांपल ले लिया। अब सेकंड लो, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, ठीक है। सेकंड राइट डाउन, साइक्लिक और closed chain, okay. Cyclic or closed chain. Which compounds are called cyclic compounds? In these are the organic compounds in which carbon atoms are joined to form cyclic ring, okay. Cyclic or ring chain or closed chain compounds, okay. Closed chain compounds. अब ये ring chain और cyclic या closed chain compound जो होते हैं उनको हम कहते हैं कार्बन एटम्स। इन दिस कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म वन और मोर रिंग्स, ओके। एक या एक से ज्यादा क्या तैयार करते हैं वो? वन और मोर रिंग्स, ओके। एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, देखो एग्जांपल साइक्लिक में कौन से भी ले सकते हो आप? दिस इज बेंजीन, बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ बेंजीन, ओके। दिस इज बेंजीन,
देन साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 4 साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। ओके, देन इसको कहते हैं पायरॉल हाइड्रोजन। ओके, इसको हम कहते हैं पायरॉल। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। ठीक है, और एक लो पाइपिरिडीन। ओके, पाइपिरिडीन, तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट साइक्लिक और रिंग चेन कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, पाइपिरिडीन, पायरोल, these are all examples of cyclic और रिंग चेन कंपाउंड्स। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड में हम देख रहे हैं दो कैटेगरीज। नोट डाउन दिस पॉइंट्स, देन we'll see these cyclic compounds, they are further classified into two types, that is homocyclic and heterocyclic। तो homocyclic यानी क्या, सेकंड कैटेगरी साइक्लिक कंपाउंड्स are again classified into two types। यहाँ पे आपको लिखना है cyclic compounds are again classified into two types, which are they carbocyclic, homocyclic and heterocyclic। तो हम पहले देखते हैं अब होमोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, देखो homocyclic or carbocyclic are the cyclic compounds in which ring is formed by only carbon atoms। ठीक है, these are the cyclic compounds, these are cyclic compounds, cyclic compounds in which ring is formed by कार्बन एटम्स ओनली। ओके, तो सिर्फ कार्बन एटम से ही बनी हुई है रिंग, तो उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। जैसा कि हमने अभी देखा, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, अब इसको नंबरिंग भी दे सकते हो आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बेंजीन भी इसका एग्जांपल है, बेंजीन भी इसका एग्जांपल है, because the ring is formed by only carbon atoms, so this is also example of carbocyclic or homocyclic। homocyclic में same atoms, कार्बन एटम से ही रिंग बनी हुई है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, देन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन है, नंबरिंग दो 1 2 3 4 5, दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। ओके, etc। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ये साइक्लिक के हमने कैटेगरीज किए। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक आर द साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग इज फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम्स। ओके, कार्बन एटम्स ओनली। ओके, सो दिस इज व्हाट होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक के भी फिर दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक में हम पहले देखेंगे एलिसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक के कंपाउंड क्लियर करते हैं, फिर हेटेरोसाइक्लिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक जो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ रिंग कार्बन की बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। अब इसमें होमोसाइक्लिक में हम क्लासिफिकेशन करते हैं व्हाट एलिसाइक्लिक। Homocyclic compounds are further classified into alicyclic compounds, and second is what aromatic compounds। ठीक है, aromatic compounds, alicyclic compounds and aromatic compounds।
तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, these aromatic compounds are the homocyclic or carbocyclic compounds. These aromatic compounds are the homocyclic or carbocyclic compounds which have identical behavior like benzene. बेंजीन जैसा उसका बिहेवियर होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है। एरोमा मींस स्पेसिफिक स्मेल दे हैव, ओके। सो दिस इज व्हाट द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक राइट डाउन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. These compounds show, or in these compounds carbon atoms are linked by single bond. एग्जाम्पल देखो, साइक्लोब्यूटेन अभी जो लिया हमने, साइक्लोब्यूटेन देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4. साइक्लोपेंटेन, ओके, साइक्लोपेंटेन etc. तो ये रिंग से एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड these compound must contain at least one aromatic ring, which resembles, जिसकी properties which resembles benzene, okay, which resembles benzene like behavior, which resembles benzene in chemical behavior देखो, okay, in chemical behavior उनका कैसा होना चाहिए, like benzene, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, दिस इज बेंजीन इटसेल्फ इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, बेंजीन। और एनिलीन देखो, ये कंपाउंड एनिलीन होता है NH2, इसमें भी देखो बेंजीन रिंग है, ओके, etc. So these are what aromatic compounds, alicyclic compounds and aromatic compounds. Note down these points. ठीक है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया। एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, ओके। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को मैं दिखाता हूं, ये नोट डाउन किया आपने। अब इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अगर उसमें बेंजीन है और वो एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाता है तो उसको हम कहते हैं बेंजीनॉइड। उन्होंने बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी तो दिखानी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी बेंजीन जैसी होनी चाहिए, ओके। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, ओके। दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो बेंजीनॉइड, ठीक है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अब जिस एरोमेटिक कंपाउंड में, the aromatic compound which contain benzene in them are called benzenoid aromatic compounds, and the aromatic compounds which do not contain benzene in their structure they are called non benzenoid aromatic compounds। इसके डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं, देखो एग्जांपल अभी मैंने जो बताया एनिलीन, वैसे ही एक ये कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं टोलिन। अगर CH3 अटैच है तो उसको कहते हैं टोलिन। ये एनिलीन भी होगा इसका एग्जांपल। अब नॉन बेंजीनॉइड का एक एग्जांपल है दोस्तों, नॉन बेंजीनॉइड का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो
नॉन बेंजीनॉइड का प्रोपोन। ओके, बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड में और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि नैप्थेलिन है, ठीक है, ये नैप्थेलिन, naphthalene is also example of benzenoid compound. प्रोपोन, प्रोपोन, अब ये एग्जांपल देखो, थोड़ा बिग स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 7 मेंबर रिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और एक ओके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एटम्स आर देयर, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम्स है, जिसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नंबर 1 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो उसका एग्जांपल है ट्रोपोन। ओके, इसका नेम है ट्रोपोन, इट इज नॉन बेंजीनॉइड। अब यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स नहीं है, टोटल 7 कार्बन एटम्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स आर देयर। ओके, 7 कार्बन एटम्स तो है, और दूसरी बात क्या है, अगर स्ट्रेट आपको लिखना है, ये अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो मैं स्ट्रेट निकाल के दिखाता हूं, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और 7, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये ट्रोपोन का स्ट्रक्चर है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड तो है इसमें, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है, ओके, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है, लेकिन वो बेंजीनॉइड नहीं है दोस्तों, क्योंकि इट डू नॉट हैव बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर इन इट, सो इट इज नॉन बेंजीनॉइड aromatic compound. These compounds, toluene, aniline, benzene, naphthalene, they are what? Benzenoid aromatic compound because they have benzene in their structure. Okay? तो ये टोटल हमने क्लासिफिकेशन देखा अबाउट होमोसाइक्लिक। तो साइक्लिक में 2 टाइप, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में फिर हमने 2 टाइप देखे, होमोसाइक्लिक में फिर 2 टाइप देखे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और फिर एरोमेटिक में हमने 2 टाइप देखे, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। ओके, तो ये हो गया अबाउट होमोसाइक्लिक। अब देखते हैं दोस्तों हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कौन से होते हैं? ओके, सेकंड टाइप नोट डाउन करो ये पहले। अब हम देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ओके, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हेटेरो मींस इट शुड कंटेन व्हाट? हेटेरो एटम इन इट। साइक्लिक रिंग है लेकिन उसमें हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम मींस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर शुड बी देयर इन देयर स्ट्रक्चर। ओके, एटम नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, ओके, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक तो देखिए हमने, अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नोट डाउन करके लो। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स
heterocyclic compounds, the compounds which contain organic compounds which contain one or more heteroatoms in it, heteroatoms nitrogen oxygen in it are called heterocyclic compounds. ठीक है, अब ये heterocyclic compounds में आपको मैंने बताया heterocyclic compounds they are further classified into heterocyclic aromatic और heterocyclic non aromatic. ठीक है, heterocyclic aromatic कौन से होते हैं? देखो ये दो कंपाउंड्स हैं, heterocyclic aromatic जिसमें aromatic बिहेवियर है, ठीक है, बेंजीन हो या ना हो, ओके, और दूसरा है heterocyclic non aromatic जिसको हम कह सकते हैं एलिसाइक्लिक. ओके, अब समझो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं पाइपिरिडिन. ओके, अब इसमें देखो एरोमेटिक तो नहीं है ये, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक है. हेटेरोसाइक्लिक मींस कार्बन एटम और कार्बन एटम के साथ हेटेरो एटम है. ठीक है, यहाँ पे देखो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक. अब ये पायरोन है, समझो स्ट्रक्चर मेरे पास हेटेरोसाइक्लिक है, एक ये लोन पेयर होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जैसा एक बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, और फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड. तो ये कॉन्जुगेशन है और ये हेटेरोसाइक्लिक है और एरोमेटिक है. ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक और एरोमेटिक. ओके, दिस पायरोल और फ्यूरान, और एक लो एग्जांपल फ्यूरान, दिस इज आल्सो व्हाट हेटेरोसाइक्लिक aromatic. Thiophene, these are what example of heterocyclic aromatic. okay, तो ये heterocyclic compounds में अगर aromatic character है तो उसको हम कहेंगे heterocyclic aromatic, और heterocyclic ring है और उसमें non aromatic character है तो उसको हम कहेंगे heterocyclic non aromatic compound. Note down these points. So in this way we have seen the classification of organic compounds. Okay, तो इस तरह से हमने दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक compounds, how these organic compounds are classified. Okay, we have seen the broad classification with their examples. Okay, definition as well as example. Hope you understood this classification of organic compounds based on carbon skeleton. Okay, carbon skeleton के बेस पे हमने ये क्लासिफिकेशन देखा. ओके